اس طرح کی بات آج تک تو میں نے پاکستان میں نہیں دیکھی. یہ میں نے اس دن ایک فیس بک پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہ ایک لڑکا چلا انڈیا کا ہی ہے, غیر مسلم, ایک لڑکا چلا, حالانکہ صفائی نصف ایمان ہے, اس نے آہستہ آہستہ ایک وہ اپنا ادارہ قائم کر لیا, صفائی کرتا ہے وہ. پہلے ایک تھا, لوگوں نے باتیں کی مگر وہ نہیں ہٹا, اب اس کے ایک گروپ ہے, ایک ادارہ ہے اس کا اپنا, وہ چلا. یعنی اب وہ کہاں سے شروع ہوا, جینیٹر سے لے کے اب وہ سی او بن چکا ہوا. جی, اور ادھر اگر ہم ایسے کریں گے, ایک بار منع کرتے ہیں ہماری عوام, ایک آدمی ایسا کرے گا 100 پیچھے باتیں کرنے والے, بجائے اس کو پروموٹ کرنے کو اس کو ڈیکریز کرتے کچھ کرے. ہم نے 75 سالوں میں کیا کیا ایز این عوام, ہم نے ابھی آج تک کون سا انیشیٹو لیا ہے کہ بھائی ہم نے صرف نعرے لگائے ہیں, بریانی کھائی ہے بس. تو یہ انہی وجہ سے اسی وجہ سے تو پھر یہ ہے نا, آپ جیسے ہم تو اوورسیز میں پیسے وہاں سے کما کے یہاں پہ بیچتے ہیں, ٹھیک ہے, بینکوں کے ذریعے, پر آگے گورنمنٹ جو ہے وہی جو ہے نا کھا جاتی ہے سب پیسہ. 20-21 فسکل ایئر کے اندر آپ لوگوں نے جو ریمیٹنس 21-22 فسکل ایئر کے اندر جو آپ لوگوں کی ریمیٹنس آئی تھی باہر کے ملک سے, وہ اراؤنڈ 29 بلین ڈالرز تھی, اور اگر وہ نہ ہوتی تو پاکستان تو پہلے ہی ڈیفالٹ کر چکا. بالکل, دیکھ لیں جب پچھلی گورنمنٹ تھی لوگوں نے بہت پیسہ بھیجا ہے, ابھی ہر بندہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیج رہا ہے. 2 نمبر طریقے سے آپ پکتے چلیں تو آپ مجھے یہ بات بتا سکتے ہیں کہ کیا پاکستان کے اندر الیکٹریسٹی شارٹیج کا, الیکٹریسٹی کرائسس کا ایشو ہے؟ بالکل ہے. یہ پاکستان میں وہ تو سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بجلی کم بن رہی ہے, یہ ایشو ہے, فلانا ایشو ہے, مگر یہ ان کی ہڈرامی ہے. اصل میں بجلی پہلے بھی بنتی رہی ہے. ابھی اگر ہم بات کرتے چلیں اپنے ہمسایہ ملک ہندوستان کی, پاکستان کے اندر آپ کے مطابق یہاں پہ انرجی کرائسس چل رہے ہیں, بجلی کا مسئلہ چل رہا ہے. بجلی 2 ہفتے پہلے جو تھا پورا دن کا شارٹ فال چلا تھا. اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک ہندوستان کی بات کرتے چلیں تو وہ اس فیلڈ کے اندر ہم سے اتنا آگے نکل گیا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے ایک ویک منا رہے ہیں انرجی ویک کے نام سے, جہاں پہ وہ سولر انرجی, جو کہ آپ کو پتہ ہے سورج سے انرجی حاصل کی جاتی ہے اور اس سے بجلی بنائی جاتی ہے, اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اب ہم ہر چیز جو ہے وہ سولر کے تھرو, سولر کی انرجی سے استعمال کریں گے. کیا کہیں گے ایز اے پاکستانی کہ جدھر ہم ابھی تک کرائسس میں گھرے ہوئے ہیں, پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اتنا نیچے جا رہی ہے, پاکستان میں انرجی کرائسس ہے, پورا دن بجلی نہیں آتی, ابھی بھی آ رہی ہے تو گھنٹے بعد جا رہی ہے, گھنٹہ آ رہی ہے, گھنٹہ جا رہی ہے, جبکہ ہمارا ملک, ہمسایہ ملک ہندوستان اتنا آگے جا رہا ہے. یہ آپ ہندوستان کی ایسی بات کریں, مطلب ہندوستان ہم سے آگے, یہ میں مانتا ہوں, مگر ہماری معیشت گر گئی ہے. ہندوستان سے تو ہم برابر میں یعنی علیحدہ ہوئے ہیں. یہ بنگلہ دیش ہم سے 20 سال بعد, پاکستان کے بعد 1971 میں علیحدہ ہوا ہے, وہ ہم سے اتنا آگے نکل چکا ہے. ہم پاکستانی بس عوام جو ہے نا, ایک سیاستدان عوام کے ساتھ کھیل رہی ہے, کوئی بھی ملک کا نہیں سوچ رہا, ہر آدمی اپنی سیٹ کے پیچھے. یہ سب سے کہتے ہیں پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں ریلی نکلتی ہے تو وہ یہاں تو نکلے گی تو کسی سیاسی جماعت کی نکلے گی, یہاں پر کسی مذہبی جماعت کی نکلے گی. لیکن اگر جب ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں اس طرح کی ریلیاں, تو وہاں پہ جب ریلی نکلتی ہے تو وہ انرجی کے لیے نکلتی ہے, وہاں پہ ایک اویئرنیس کے لیے نکلتی ہے کہ بھائی وہ اپنی پبلک کو بتا رہے ہوتے ہیں. اصل میں ہماری عوام میں اتنا شعور نہیں ہے, وہ عوام میں شعور جگا رہے ہیں. ہماری عوام میں اتنا, سیاستدان صرف کہتے ہیں سب سے برا نشہ طاقت کا نشہ ہے, تو یہ صرف اپنی کرسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہر آدمی جب بھی دیکھیں گے کسی بھی طرح کوئی ریلی اکٹھی ہوگی, اس میں سیاسی ایشو آئے گا, سیاست اپنی استعمال. اس طرح کی باتیں کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا کہ بھائی یہاں پہ انرجی کو ہم نے ایسے کنزیوم کرنا ہے, اس کو یہاں پہ ہم نے جو ایلوکیٹ کرنا ہے, اس طرح کی بات ہوتی ہے. اس طرح کی بات آج تک تو میں نے پاکستان میں نہیں دیکھی. یہ میں نے اس دن ایک فیس بک پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہ ایک لڑکا چلا انڈیا کا ہی ہے, غیر مسلم, ایک لڑکا چلا, حالانکہ صفائی نصف ایمان ہے. اس نے آہستہ آہستہ ایک وہ اپنا ادارہ قائم کر لیا, صفائی کرتا ہے وہ. پہلے ایک تھا, لوگوں نے باتیں کی مگر وہ نہیں ہٹا, اب اس کے ایک گروپ ہے, ایک ادارہ ہے اس کا اپنا, وہ چلا. یعنی اب وہ کہاں سے شروع ہوا, جینیٹر سے لے کے اب وہ سی او بن چکا ہے. جی, اور ادھر اگر ہم ایسے کریں گے, ایک بار منع کرتے ہیں ہماری عوام, ایک آدمی ایسا کرے گا 100 پیچھے باتیں کرنے والے, بجائے اس کو پروموٹ کرنے کو اس کو ڈیکریز کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فیلڈ کے اندر جو ہے ہندوستان ہم سے آگے چلا گیا, ہم سے جو الگ ہوا. آپ بنگلہ دیش کی مثال دے رہے تھے, بنگلہ دیش کی بات کی جائے تو وہ ہم سے الگ ہوا, اس کو بھی الگ ہوئے 50 سال پورے ہوئے ہیں. 50 سالوں کے اندر بنگلہ دیش ہم سے اتنا آگے جا چکا, اور ہم جن سے الگ ہوئے تھے وہ بھی اتنا آگے جا چکے ہیں. تو ہم کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی آگے نہیں بڑھ پا رہے؟ دیکھیں بھائی, پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی طاقت ہے. انگریز یہ چال چل رہے ہیں, بس وہ اسے نا وہ اسی یہ ساساجات جو ہے نا وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں.
वो इसको नीचे दिखाना है। नहीं, पाकिस्तान एटमी ताकत है, उससे अंग्रेज़ का क्या इशू है? पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो रही, उसमें अंग्रेज़ का क्या हाथ है? इसमें यही आलमी सियासत जो है ना, वो इस्लाम को आगे नहीं बढ़ना दे रही। अच्छा, इस्लाम सिर्फ पाकिस्तान में है? नहीं, इस्लामी ताकत सिर्फ पाकिस्तान है, मैं ये बात नहीं कर, इस्लाम बहुत से मुल्कों में, मगर इस्लामी ताकत सिर्फ पाकिस्तान है। सऊदी अरब नहीं है? नहीं है इस्लामी ताकत नहीं है? इस्लामी ताकत नहीं, इस्लामी एटमी ताकत की बात कर रहा हूँ मैं। इसे यार अब ये देखो ना, हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में इतने ज़्यादा हैं, हमने एटम बम का भी करना क्या है? एटमी बम, ये तो कह रहे हैं हम गिरवी दे रहे हैं। कौन? ये मैंने इसहाक डार का इंटरव्यू खुद सुना है, वो कहते हैं हम एटमी दे भी दें तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, वो अपनी एटमी ताकत को गिरवी रखवाने जा रहे हैं। ये आप शायद नहीं जानते, पाकिस्तान का ये जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है वो भी अमेरिका को दे चुके हैं, नेशनल बैंक भी दे चुके हैं। नेशनल बैंक तो हुकूमत का होता है ना जी, ये उनको गिरवी दे चुके हैं अमेरिका को, सिर्फ अपनी माशियत की सीधा करने के लिए। हो जाएगी इससे ठीक, आपको लगता है? नहीं होगी किसी भी सूरत। ये जब तक अवाम में शऊर नहीं आएगा, सियासतदान साफ नीयत के साथ मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे। यार आपको लगता है कि इंडिया के जो सियासतदान हैं वो काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं पाकिस्तानी सियासतदानों की निस्बत? इनकी निस्बत तो मेरे ख्याल में सब सारी दुनिया की बेहतर कर रहे हैं, मतलब बांग्लादेश के भी बेहतर कर रहे हैं? वो इससे भी बेहतर है, वो जो भी हैं इससे बेहतर है। ये तो बस एक ही मुल्क है इतना सा, और 18 पार्टियां बनी पड़ी हैं। सर जी, पाकिस्तान के हालात अभी अल्लाह ताला को बेहतर करें। बाकी जो हमारी गवर्नमेंट है, चोर गवर्नमेंट इसको कहूँगा मैं, क्योंकि हमारे जो हम ओवरसीज, ठीक है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, इन चोरों की वजह से। अभी आप खुद हिसाब लगा ले कि डॉलर 278 का हो गया है। मैं आज एक्सचेंज करवा के आया हूँ, 275 उन्होंने सेल किया, और जो वो बाय कर रहे थे वो 277.64। खुद हालात लगा लें कि ये इन्होंने क्या कर दिया। गरीब आदमी का यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। एनर्जी क्राइसिस की बात हो रही थी, तो एनर्जी से हवाले से मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस का आपको बेहतर पता है कि किस तरह से हमारे मुल्क में इस वक्त एनर्जी के क्राइसिस चल रहे हैं। लेकिन अगर हम उसी हवाले से बात करते चलें तो जो हमारे हमसाया मुल्क है हिंदुस्तान, वहाँ पे एनर्जी वीक मनाया जा रहा है, यानी कि पूरे वीक के लिए वो एक अवेयरनेस कैंपेन करेंगे, एक रैली चलेगी जो कि सोलर एनर्जी के ऊपर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएगी। क्या समझते हैं आपके करने क्या जा रहा है हिंदुस्तान, और हम कहाँ पे अभी तक स्टैंड कर रहे हैं? हिंदुस्तान बहुत आगे निकल चुका है और पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया है। तो एनर्जी का आप खुद देख लें, यहाँ पे लाइट होती नहीं है। पिछले दिनों में 3-4 दिन में बिल्कुल लाइट पूरे पाकिस्तान में नहीं थी। तो पहले जो गवर्नमेंट थी, इससे पहले आपने देखा होगा तो कि क्या वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश, मैं इन तीनों मुल्कों की अगर बात करूं तो ये एक ही खित्ते के मुल्क हैं और बांग्लादेश हमसे ही अलग हुआ हुआ है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है। जबकि अगर हम इस पाकिस्तान की बात करें जो कि मौजूदा पाकिस्तान है, तो यहाँ पे ये सारे मसले जो हैं ये दरपेश हैं। ये जो गवर्नमेंट है ना, सिर्फ अपने ख़जाने भरने के लिए। यार हम हर चीज़ गवर्नमेंट पे क्यों डाल देते हैं? गवर्नमेंट आपके सामने है, वो जो भी है। अभी देखें, नवाज शरीफ साहब की वालदा फौत हुई है, वो पाकिस्तान में नहीं आया, ठीक है, वो इलाज करवाने उधर जाते हैं, ठीक है। बाकी खुद आप हिसाब लगा ले, गवर्नमेंट पे भी जाएगा ना, गवर्नमेंट कुछ करे। हमने 75 सालों में क्या किया एज एन अवाम? हमने अभी आज तक कौन सा इनिशिएटिव लिया है कि भाई हमने सिर्फ नारे लगाए हैं, बिरयानी खाई है, बस। तो ये इन्हीं वजह से, इसी वजह से ही तो फिर ये है ना, आप जैसे हम तो ओवरसीज में पैसे वहाँ से कमा के यहाँ पे बेचते हैं, ठीक है, बैंकों के ज़रिए, पर आगे गवर्नमेंट जो है वही जो है ना खा जाती है सब पैसा। 20-21 फिस्कल ईयर के अंदर आप लोगों ने जो रेमिटेंस, 21-22 फिस्कल ईयर के अंदर जो आप लोगों की रेमिटेंस आई थी बाहर के मुल्क से, वो अराउंड 29 बिलियन डॉलर्स थी, और अगर वो ना होती तो पाकिस्तान तो पहले ही डिफ़ॉल्ट कर चुका है। बिल्कुल देख ले, जब पिछली गवर्नमेंट थी लोगों ने बहुत पैसा भेजा है, अभी हर बंदा हुंडी के ज़रिए पैसा भेज रहा है। मतलब 2 नंबर तरीके से अब पाकिस्तान में पैसा आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट पे किसी को यकीन ही नहीं है इस गवर्नमेंट पे। देखे पहले जब साग डार आया था, आपने देखा होगा डॉलर उसने रोक रखा था, ठीक है। वैसे जो डॉलर या रियाल था ना, वो मार्केट में ज़्यादा सेल हो रहा था, पर ऑनलाइन इन्होंने जो रेट किया हुआ था ना, वो कम था। अभी देखें किधर चला गया एकदम, उन्होंने जब खोला है, ओपन किया है। तो इस वक्त आज मैं आपको बता रहा हूँ 278 थे। बिल्कुल, अभी रियाल 73 रियाल का है। तो सर इन हालात के अंदर अगर हम बात करते चलें कि हमें अभी ज़िद छोड़ के हम अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इनसे कुछ सीखना चाहिए या अभी भी ज़िद पे बरकरार रहना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए। बांग्लादेश देखें, छोटा सा मुल्क है जी, वहाँ पे चावल और मच्छी की काश्त होती है बस, ठीक है। वो देखें कितना अभी बहुत हमसे आगे हैं वो। उनका अभी 1 रियाल जो है ना, वो अलग हुए हैं। वो अलग हो के छोटा सा मुल्क है, इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। अभी 1 रियाल 21 का उनका है, ठीक है। तो साहब आप खुद लगा लें कि ट्रिपल
फ़र्क है हम और उनमें। 21 का एक सऊदी रियाल और पाकिस्तान के अंदर आप बता रहे थे 73 का है 73 का। इंडिया तो का। सर इन हालात के अंदर अगर हम बात करते चलें, थोड़ी सी सख्त बात है, वो अपने आप को मतलब बेहतर नहीं महसूस करते होंगे अलग हो गए पाकिस्तान से कि शेख मुजीबुर रहमान को दुआएं देते होंगे? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा वो महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर समझ रहे हैं। अभी पाकिस्तान जिस हालात में जा रहा है, अल्लाह ही कुछ रहम करे, तो बाकी अवाम के। सर नरेंद्र मोदी के बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो एक इंडिया के अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं? वो इंडिया का मैं नहीं कह सकता, नहीं अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ से तो बेहतर ही है, चोर से तो बेहतर ही है। इंडिया नरेंद्र मोदी शहबाज शरीफ से बेहतर है? बेहतर है, बिल्कुल बेहतर। सर नरेंद्र मोदी के टर्न्योर के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, ठीक है। उनके आप देखें, उन्होंने गाड़ियाँ परचेज़ की हैं, बिजली का उनका आप सोलर देख लें। बाकी वो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना दुनिया में उन्होंने किया है। तो अगर इसी हवाले से पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, क्या उनको आप ये सजेशन देंगे कि वो भी नरेंद्र मोदी से कुछ सीखें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें? बिल्कुल जी, उन्होंने हमसायों से तुर्की से सीखना चाहिए, सऊदी अरब से सीखना चाहिए, इंडिया से बांग्लादेश से सीखना चाहिए, ठीक। इस तरह तरक्की नहीं होती है। अपना अपना तरीका। हर आदमी बस आवाम को लालच लगा के अपना कपड़ा सीधा कर रहा है। इस तरह तरक्की नहीं कर सकता मुल्क। मगर अगर तरक्की चाहते हैं तो ये आप ज़्यादा नहीं, ये यूरोप कंट्री देख लें, अपोजिशन और हुकूमत दो पार्टियाँ इस तरह की काम। ये ये आप पाकिस्तान की सूरत हाल देखें, वफाक में किसी और की, एक सूबे में एक की, एक सूबे में एक सूबे में एक की। इस तरह मुल्क तरक्की कभी भी नहीं कर सकता। एक प्रेसिडेंशियल निज़ाम होना चाहिए, एक होना चाहिए ना एक। वो तो इंडिया में भी नहीं है, लेकिन इंडिया तो फिर भी तरक्की कर रहा है। मगर उसके अवाम में शऊर, मैंने पहले बताया, उसकी अवाम में ज़्यादा शऊर है हमसे। हमारी अवाम को शऊर कैसे बेदार करें अवाम में? शऊर जैसे आप ये वीडियो बता रहे हैं, इस तरह ये यूट्यूब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें इंडिया वाले, ये चैनल बना। भाई हम तो ये वीडियो बनाते हैं, लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि आप इंडिया की तारीफ़ क्यों कर रहे हो, आप इंडिया के बारे में अच्छी बात क्यों बता रहे हो पाकिस्तानियों को? नहीं, इंडिया की तारीफ कर, जिसमें जो भी खासियत है, चाहे वो मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, तारीफ उसकी करनी चाहिए। अब तुर्की का निज़ाम देखा है, वो सदर एक बात करता है, पूरा मुल्क जाम। ये हम नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं, मगर हम मतलब हमें अभी इंडिया से सीखने की ज़रूरत है। हाँ, ये भी कह सकते हैं, सीखना शैतान से भी बड़े अच्छा सीख सकते हैं, शैतान से भी सीख रहे हैं इंडिया, तो फिर भी एक पहली बात तो ये है कि एनर्जी में हम इंडिया से अगर कंपैरिजन करें तो इंडिया के जो डैम है हमारे पास तो चंद हाथों में गिने जा सकते हैं। इंडिया के तो हम हाथों पे नहीं गिन सकते, उंगलियों पे नहीं गिन सकते, इतने ज़्यादा डैम है वो। ये गलती किसकी है? जाहिर है सियासतदान हमारे, और कौन है? हमने खुद तो नहीं उठ के चले जाना बिल्कुल कि यार हमें ये कर दे, यार ये जो भी है काम ही डैम ही नहीं बनाया, डैम ही नहीं बनाया, वक्त ज़ाया किया है। डैम ये भी नहीं है कि रातों रात डैम बन जाए, ठीक है। अगर हम ऐसे भी करें, छोटे छोटे बनाते रहते, बड़े ना लगाते, ये इन्होंने कहा कि नहीं भाई रातों रात ही सारा काम डाल देना है, वो इतने बड़े हैं कि सालों में भी नहीं ख़त्म हो रहे, वो प्रोजेक्ट वहीं के वहीं रह गए। इंडिया से तो हम ना ये करें, ज़िद करनी हमें सूट ही नहीं करती ये चीज़, थोड़ा सोची बोलिए। तो मैंने कहा ये तो हमें सूट ही नहीं करता कि हम इंडिया से इस बारे में कंपैरिजन या करें। तो यही कर सकते हैं कि अगर अल्लाह इनको शऊर दे कुछ। नहीं, बात ये हो रही है बेसिकली कि हम एक ही खित्ते में रहते हैं, जो मौसम इधर हैं वही मौसम उधर हैं, जैसे लोग इधर हैं वैसे ही लोग इधर हैं उधर हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने में आता है कि एक कौम जो है वो अपने मुल्क के अंदर एनर्जी वीक मना रही है, यानी कि वहाँ पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे मुफ्त बिजली भी दी जाती है, या अगर वहाँ पे बिजली का रेट लिया भी जाता है तो वो काफ़ी कम होता है, पाकिस्तान की निस्बत तकरीबन आधे से भी आधा है। पाकिस्तान में एक तो बिजली इतनी महंगी, ऊपर से बिजली आती नहीं, और अगर आती भी है तो वो भी 1 घंटा आती है और 2 घंटे के वक्फे से चली जाती है। इन हालात के अंदर हम फिर ऊपर से डिमांड करते हैं कि भाई हमें कश्मीर भी चाहिए। पाकिस्तान हमसे अभी एनर्जी क्राइसिस की वजह से संभाला नहीं जा रहा, कश्मीर भी अगर हमारे पास आ जाए तो क्या हम उसको इसी तरह नहीं रखेंगे? बिल्कुल, आपने बड़ी प्यारी बात की है कि ये मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी बात कि ये कश्मीर की डिमांड करते हैं, एनर्जी इनसे पूरी नहीं होती। तो आपने अच्छी बात की। तो मैं भी यही कहूँगा कि यार ऐसा है कि इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इंडिया तो मुझे उनकी ये भी अच्छी चीज़ लगी कि अवेयरनेस के ऐसे प्रोग्राम इधर भी चलने चाहिए। पाकिस्तान में अगर कोई रैली निकलती है, वहाँ पे रैली निकल रही है, वो सोलर एनर्जी को मतलब अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान में रैली निकलती है तो पाकिस्तान में सियासी रैली निकलेगी, हमें पाकिस्तान में एहतजाज निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेफजूलियात की तरफ जो बढ़ना है हमने,
اور کام کی چیز ہوگی ان کے پیچھے نہیں. دیکھیے ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے تھا کہ ہم بھی کوئی تو ہم کیوں نہیں سیکھتے ان سے؟ نہیں سیکھتے, ضد ہے نا, ہمیں اچھی چیز اچھی نہیں لگتی. ہم کہتے ہیں ہمیں جو بھی ملا ہے محبت نفرت صرف وراثت میں مل گئی ہے, بڑوں نے سکھا دی ہے. انڈیا سے یا اپنے بڑوں سے کہہ لیں, یا کسی سے بھی, یا صرف انڈیا سے؟ انڈیا سے کیوں, ان کا اچھا کام ہم کیوں نہیں اپناتے؟ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. آپ کہہ رہے ہو کہ اچھی بات کیوں نہیں اپناتے. ہم کل پرسوں ویڈیو بنا رہے تھے, وہاں پہ میں نے اسی طرح ان کو بتایا کہ بھائی یہ چیز اگر ہم کریں گے تو بیٹرمنٹ ہو جائے گی پاکستان کی, یہ انڈیا کر رہا ہے. اینڈ لٹرلی کین یو امیجن, وہاں پہ انہوں نے مجھے پکڑا اور وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم بھائی انڈین ایجنٹ ہو. لو یہ کیا بات ہے بھائی, انڈین اگر وہ ہماری کوئی اچھی چیز کاپی کر لیتے ہیں جن کا ان کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ کر لیتے ہیں, وہ اس میں شیم فیل نہیں کرتے. ہم کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ یہاں کو تو مذہب کا لے آتے ہیں یا وہ سیاست کا لے آتے ہیں یا کوئی ایسا کچھ نہ کچھ لے آتے ہیں. یہ نہیں کرنا کہ یار یہ سب تعصب ایک سائڈ پہ رکھے اور اپنا جو فائدے کی, مطلب ہمیں جب اپنے ملک کی بات آئے گی تو نہ وہاں پہ مذہب آئے گا, نہ وہاں پہ کوئی ہماری ذات پات اور نسل وغیرہ آئے گی. بالکل آپ نے بڑی, پھر بھی ہم وہ سامنے رکھتے ہیں. یہی تو بات ہے. بندہ ہر بندے میں شعور تو نہیں ہے, پانچوں انگلیاں برابر تو نہیں ہے, ہر بندہ ایک الگ ہی مزاج رکھتا ہے. ہم ایک دوسرے کو بھی بلائیں گے تو اس طرح بلائیں گے, تو پنجابی ہے, تو سندھی ہے, تو بلوچ. بالکل, گھر میں یہ جھگڑے نہیں ختم ہو رہے, باہر کیا لڑیں گے ہم, باہر کسی سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں. گھر میں ہمارے بنگلہ دیش کی بات کر لیں تو پاکستان سے آدھی سے زیادہ ٹیکسٹائل فیصل آباد کی جو انڈسٹریز ہیں وہ شفٹ ہو کے بنگلہ دیش میں جا چکی ہیں. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. وہ ماشاء اللہ سے کوالٹی دیکھے میں نے